Moving to our next paper is experimental investigation on temperature effects on the capacity, efficiency, and internal resistance of lithium batteries, lithium-ion batteries, right? And for this, the author is Professor Dr. Mohammad Mohsin Aman. He is Director, Ashore Center, NED University. To introduce Dr. Saab, just to have his few credentials, he had received his Bachelor's of Engineering and in Electrical Engineering and a Master of Engineering from NED in 2006 and 2011 respectively. He has completed his PhD degree from University of Malaya in 2014 under the Bright Spark Scholarship Program of University of Malaya. He is a senior member of IEEE, associate member of IET, and professional engineer of Pakistan Engineering Council. Currently, he is working as a professor and co-chairperson at the Department of Electrical Engineering in NED University. He is leading various industrial projects across the globe. He is also a director of Center of Advanced Studies in Renewable Energy. This center provides testing facility in Pakistan for industry including solar panels, battery testing, VFDs, relay testing, and other such renewables equipment. So, Dr. Saab, over to you now. Thank you so much, Path, and thank you so much IEEE, Irfan Saab, and others. IEEE, I am associated with IEEE seminars since last 7 years, and no doubt IEEE is a true bridge in between academia and industry, because the platform IEEE provides is very much near to the industry as well as for the academia as well. This is not something like आप बैठे और गुफ्तगू गिरी और चले गए. यानी अभी जो आपने रिसर्च पेपर्स देखे वो भी मुझे ज़्यादातर इंडस्ट्री बेस भी लगे. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री के हिसाब से भी थी, बहुत सारी चीज़ें एकेडमिया के हिसाब से भी थी. सो एक दफ़ा IEEE के लिए आप लोग क्लैप कर लें. ऑल्दो ऑडियंस बहुत कम रह गई है आफ्टर लंच, तो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ a practical applications of a battery. We have used a commercial battery and we have tested it in our lab. So basically battery health assessment. Since many people knows that our center provides the testing services related to the solar panel, but we have also doing testing services related to the battery as well as some other services. So battery health assessment, as you know, is very important. For example, if you are going to buy some old battery, either related to the EV or some solar or whatever wind, you need the health of the current battery. अगर आप EV buy कर रहे हैं सेकेंड हैंड, उसमें असल चीज़ है ही बैटरी. अगर आपको बैटरी यूज मिली है, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी है, लाइफ अपनी पूरी कर चुकी है, तो उस कार की वैल्यू कुछ भी नहीं है. तो इसी मोटिव के साथ मैंने ये लैब स्टार्ट की थी बैक इन 2021. तो हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स चीज़ें ऐड कर रहे हैं. तो बैटरी की हेल्थ कैसे असेस होगी वो हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह रिलेटेड. कैपेसिटी टेल अस हाउ मच एनर्जी द बैटरी कैन स्टिल स्टोर कंपेयर टू द ओरिजिनल रेटिंग. सो वी फाइंड आउट the rating of the current battery as compared to the original battery. We also identify the weak cells within a battery. Maybe some of the cells could be damaged. So we also classify. This is called sorting. अगर आप पुरानी बैटरी लेते हैं तो हो सकता है पुरानी बैटरी में सारे सेल्स ख़राब ना हो, लेकिन उसमें से आइडेंटिफाई करना कौन से सेल्स ख़राब हैं, कौन से सेल्स सही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस जॉब होती है. वो हम लोग इसके ऊपर टेस्टिंग करके आइडेंटिफाई करते हैं. इसी तरह से अभी जैसे मैंने प्रेजेंटेशंस में सुना, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में लगाने का सोच रहे हैं. एक कंपनी ने हमसे भी कांटेक्ट किया है कि हम पाकिस्तान में सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे. इसमें जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो है एक तो मैकेनिकल इम्पैक्ट जब आएगा तो वो उसके हिसाब से वो भी देखना है. एक है टेम्परेचर जो है बैटरी का -20 से +50 डिग्री तक जा सकता है, राइट. अब उसकी सस्टेन करता है या नहीं करता वो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करना. तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमने बैटरी टेस्टिंग में यूज़ करें. ये हमारे पास अवेलेबल हैं. क्रोमा 17020, ये USA का इक्विपमेंट है. मेगा टॉर्केल
इन्वायरमेंटल चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है। बाइट 5 मेगर का इक्विपमेंट है, ये इम्पीडेंस टेस्टिंग के लिए यूज होता है, राइट। Capacity discharge test. So the first test which we have performed is capacity discharge test on a commercial battery. The battery was originally this one. This is the Lexo battery, and rating was 100 amperes hours, 5.12 kilowatt hours battery, right? And this is the new battery. So we performed the capacity discharge test on this battery, and we found out that the battery rating is equal to 96.9 amperes, right? So this is a new battery, and normally the battery is discharged at 0.3 C. आपको शायद आइडिया होगा C रेटिंग ऑफ अ बैटरी का। तो बैटरी जो डिस्चार्ज की जाती है वो 0.3 C, जब टेस्ट की जाती है तो 0.3 C के ऊपर डिस्चार्ज की जाती है, यानी फुल करंट के ऊपर डिस्चार्ज नहीं की जाती। आल्दो हमने एक दफ़ा 100 एम्पियर्स के ऊपर 100 एम्पियर्स की बैटरी डिस्चार्ज करी तो वो सिंपल अराउंड 59 समथिंग % ही दे सकी, राइट। इसका मतलब है ज़्यादा पावर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एम्पियर्स आवर्स आपको फुल नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम AC चला लें बैटरी के ऊपर, अब AC चलाएंगे तो उसका जर्क इतना ज़्यादा है कि वो जो डिस्चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, राइट। तो स्टेबल ऑपरेशन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से बैटरी के अंदर मुख्तलिफ मोड्स हो सकते हैं, जैसे ये हमने जो करा है कंट्रोल करंट के ऊपर करा। कंट्रोल करंट का मतलब करंट कंट्रोल फिक्स रहेगा। टॉर्कल का जो इक्विपमेंट है जो हमने यूज़ करा इसके अंदर टेस्टिंग के दौरान, वो जो इक्विपमेंट था इसके अंदर 3 मोड्स हैं, कंट्रोल करंट भी है, कंट्रोल वोल्टेज भी है, कंट्रोल पावर भी है, राइट। तो हमने कंट्रोल करंट के ऊपर करके देखा, फिर हमने इसको कंट्रोल पावर पे करा, कंट्रोल वोल्टेज पे करा, राइट। तो तीनों में जो पावर रेटिंग है वो फ़र्क होती है। आपने ये आइडिया होगा डिफरेंट टाइप्स के लोड होते हैं, कंट्रोल करंट, कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल पावर, कंट्रोल रेजिस्टेंस। तो ये नेचर ऑफ लोड के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप बैटरी में से कितनी पावर किस मैकेनिज्म के तहत ड्रॉ कर रहे हैं। फिर हमने एक और टेस्ट परफॉर्म किया, ये डिफरेंट कंट्रोल करंट, कंट्रोल वोल्टेज और कंट्रोल पावर के ग्राफ्स हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पावर की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ लोड वेरी करेगी, यानी फिक्स नहीं रहेगी। अगर आप कह रहे हैं कि 100 एम्पियर आवर की बैटरी वो हमेशा 100 एम्पियर आवर देगी तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा हमने एक काम ये करा है कि हमने एक बैटरी थी उसको डिफरेंट C रेटिंग के ऊपर डिस्चार्ज करा, एक दफ़ा 0.3 पे करा और एक दफ़ा 0.7 पे करा। अच्छा, इसमें जो अगर आप नोट करें, आपको शायद वहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, जब हमने इसको करा 70 वाले के ऊपर तो उसकी रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा आई। ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि वो जो टेम्परेचर था सराउंडिंग का वो पहले वाले में कम था, बाद वाले में थोड़ा ज़्यादा था। तो टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा मैटर करता है डिस्चार्जिंग के ऊपर, कि आपने टेम्परेचर कितना मेंटेन करवा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमने टेस्ट परफॉर्म करा, इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रेंड, ठीक है। ये हमने हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करी और बैटरी के ओवरऑल रेजिस्टेंस भी मेजर करी। जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं तो हम हर एक सेल की वैल्यू मॉनिटर करते जा रहे थे। बैटरी अंदर से खुली हुई है, 16 सेल्स हैं, तो 16 सेल में हमने हर एक के सेल मॉनिटर करे। और यही एक मैकेनिज्म होता है कि आप बैटरी के हेल्थ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हेल्थ सही है या नहीं है, या जिस सेल की हेल्थ ख़राब है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, लॉसेस उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप वो बैटरी, हमने काफ़ी सारा ये भी काम करा है कि शेषा से लेकर आते थे, वो किलो के हिसाब से मिल जाती हैं, तो हमने खुद से भी बनाए क्योंकि उनके लिए सारी सेल्स बराबर हैं। हमने उसमें से देख के जो काम के सेल थे वो रखे और बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। अभी भी कुछ लोग में जो सर्कल में वो उसको न्यू करके बेच देते हैं, राइट, सॉर्टिंग करके। ये इसके प्रोफाइल्स हैं रेजिस्टेंस के, तो आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ जो हैं बहुत नियरली 0.3 मिली ओम्स के दरमियान वेरी कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने ओवरऑल सेल की मॉनिटरिंग करी कि ग्रेजुअली देखा कि सेल की वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है। एक प्रोब हमने मेगा बाइट 5 की फर्स्ट सेल पे लगाई, फिर दूसरे सेल पे, फिर तीसरे सेल पे, तो ओवरऑल वैल्यूज़, क्योंकि आपस में सेल सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो वो वैल्यूज़ आपस में सारी ग्रेजुअली बढ़ते चले गई। एक ये स्ट्रैप कहलाता है, इंटरबिग स्ट्रैप। ये स्ट्रैप लगा होता है 8वें और 9वें सेल के दरमियान। तो हमें एक थोड़ा सा ये नज़र आ रहा था कि जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं बढ़ रहा। फिर जब हमने स्ट्रैप सेल की रेजिस्टेंस मेजर करी तो स्ट्रैप सेल्स की रेजिस्टेंस भी अच्छी खासी आई थी, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको थर्ड कॉलम में 2.636। ये स्ट्रैप सेल ये लगा हुआ आपके पास, ये रेड कलर का जो स्ट्रैप सेल है, राइट। तो हमने इसको मॉनिटर करा। इससे आप क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, आप वीक सेल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद एक ये टेस्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट टेस्ट। टेम्परेचर इफेक्ट टेस्ट, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल
टेस्ट क्रिटिकल इसलिए है कि इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होना है वो बड़ा एक्सपेंसिव है। ये इन्वायरमेंटल चैम्बर है हमारे पास -70 डिग्री सेंटीग्रेड से +150 तक जाता है। -70 एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप -70 इमेजिन करें। अब जैसे भी हमने डिस्कस करा, बैटरी को चेक किया जाता है -20 के ऊपर। अब -20 लेकर कहाँ से आएंगे? जैसे सुपारको अगर हमसे टेस्टिंग करवाते हैं तो उनको कुछ इक्विपमेंट्स -40 पे चेक करवाने होते हैं। अब -40 को सिमुलेट करना रियल लाइफ में आसान चीज़ नहीं है। नाइट्रोजन गैस है, मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये टेस्ट फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। ये लास्ट ईयर ही हमारे पास आया है। और इसकी डायमेंशन क्या है? अगर इसमें ये डायमेंशन है इसकी, आपको शायद इमेजिन भी हो रहा होगा, एक बंदा पूरा चैम्बर के अंदर मौजूद है। तो हमने बैटरी को इसके अंदर रख दिया, इसको टेम्परेचर के हिसाब से इसको बैटरी को डिस्चार्ज करा और टेम्परेचर के हिसाब से मॉनिटर करा कि -20 के ऊपर क्या रेटिंग होगी, राइट। हाल तो हमने -20 पे नहीं करा क्योंकि -20 क्रिटिकल हो सकता था, हमने -10 पे करके देखा, राइट। जैसे ही आप टेम्परेचर नेगेटिव में लेके जाते हैं तो लिथियम आयन का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, कैपेसिटी बहुत कम रह जाती है। जैसे सोलर पैनल में तो नेगेटिव का इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन बैटरी में ये इम्पैक्ट नेगेटिव है। माइनस के ऊपर जो होगा कैपेसिटी आपको कम मिलेगी। 100 एम्पियर आवर की बैटरी आपको जो आउटपुट देगी वो कम देगी, राइट। ये इसकी लास्ट ईयर ही हमने तकरीबन समझ लें सितंबर में ये आइटम हमने प्रोक्योर किए थे। ये वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट की फंडिंग थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक प्रोजेक्ट था उसके साथ मिलके। तो ये अच्छा खासा बड़ा इन्वायरमेंटल चैम्बर है। इसकी डायमेंशन आपके सामने लिखी हुई है, 6.23 फीट, 8.2 फीट, 5.58 फीट, राइट। यानी आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। पैनल भी रख के हम लोग टेस्ट करते हैं, बैटरी भी करते हैं, इन्वर्टर्स भी करते हैं, राइट। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशंस आई। तो +50 के ऊपर और -20 के ऊपर आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। एट लो टेम्परेचर्स लिथियम आयंस मूव मोर स्लोली, इंक्रीजिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस कॉजेस हायर वोल्टेज ड्रॉप अंडर लोड लीडिंग टू LD कट ऑफ एनर्जी remains inside the battery, right, जो भी हमने डिस्कस किया। So these were the 4 different tests which we perform on commercial industrial battery। अच्छा, कुछ हम जो फैसिलिटीज़ हैं मैं उसको भी इसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से, क्योंकि ये इंडस्ट्री की फैसिलिटेशन के लिए, जैसे NED यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इसके अंदर हम सोलर पैनल की टेस्टिंग करते हैं, इन्वर्टर की टेस्टिंग करते हैं। इन्वर्टर जो आपके पास सोलर पैनल के भी या इवन के UPS इन्वर्टर्स हैं उसकी भी टेस्टिंग। STC टेस्ट है, EL टेस्ट है, वेट लीकेज टेस्ट है, डायनामिक लोड टेस्ट है, PID टेस्ट है, हॉट स्पॉट, LID टेस्ट, डायोड टेस्ट, पावर एंड PQ टेस्ट, पावर क्वालिटी टेस्ट। जो भी बात हो रही थी पावर क्वालिटी से रिलेटेड, इन्वर्टर की पावर क्वालिटी क्या होगी, उसके हार्मोनिक्स THD वैल्यूज़ क्या होंगी, उन सब की। लोड बैंक, ये लोड बैंक हमारे पास एक मौजूद है, 100 किलोवाट, 100 kVAR कैपेसिटिव, 100 kVAR इंडक्टिव, राइट। एनर्जी ऑडिट सर्विस, पावर क्वालिटी एनालाइजर वी हैव। अभी जो प्रेजेंटेशन थी लास्ट, उसके अंदर 100 हार्मोनिक्स तक का मेजर उन्होंने मेंशन किया। तो 100 हार्मोनिक्स तक मेजर करने के लिए जो आपको पावर क्वालिटी एनालाइजर चाहिए वो बहुत स्पेशल किस्म के होते हैं। स्पेशल इन द सेंस के एडवांस है। मेजरली जो पुराने जो अवेलेबल हैं वो 50 तक करते हैं, 100 तक नहीं करते। तो अब एडवांसमेंट के हिसाब से 100 हार्मोनिक्स की भी इंपॉर्टेंस आ गई। इसी तरह से आपने शायद सुना हो या ना सुनो, अब जो सब सिंक्रोनस ऑसिलेशन लेस देन 50 हर्ट्स की भी जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आ गई है। यानी लोग 10 हर्ट्स के हार्मोनिक्स भी मेजर करने लगे, क्योंकि वो ऑसिलेशन क्रिएट करवा के सिस्टम को अंदर फेरो रेजोनेंस वगैरह डेवलप कर देते हैं। तो पावर क्वालिटी एनालिसिस, थर्मल एनालाइजर, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन टेस्टर, जो कि लूप इम्पीडेंस, जैसे आप घर में देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट या SPDs या जो आप RCD वगैरह लगाते हैं उसकी ट्रिपिंग होगी या नहीं होगी, तो ये भी एक इंस्टॉलेशन टेस्टर है। अर्थिंग टेस्टिंग सर्विसेज, ठीक है, इसके अंदर हम सॉइल रेसिस्टिविटी टेस्ट होता है, SRT जो कहलाता है, इसी तरह से रॉड की अर्थिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, तो ये तमाम चीज़ें भी मॉनिटर होती हैं, ठीक है। से प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट सर्विसेज जिसमें CPC 100 है, ओमिक्रॉन का, CMC 356, बैटरी टेस्टिंग, वो अपना सर्किट ब्रेकर टेस्टिंग हो गई, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग हो गई, रिले टेस्टिंग हो गई, तो ये तमाम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, राइट।
आवर सेंटर इज़ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। यानी ये एक बहुत पहले प्रॉब्लम आती थी हमारे पास के लोगों के पास, जाहिर सी बात है ये एक ऐसी चीज लैब होती है जिसकी कोई ROI नहीं होता। ये कब ROI देंगे, ख़त्म करेंगे, कोई भी प्राइवेट बंदा ये लगाता ही नहीं है। इस तरह की लैब्स बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका कब ROI निकलेगा? बहुत सारी चीज़ें, कस्टम डिपार्टमेंट हमारा जो एक वो रेगुलर क्लाइंट है एक तरह से, वो हर महीने समझ लें 10-12 असाइनमेंट हमें देता है, जिसमें आपको पता है अंडर इनवाइसिंग के मसले वगैरह होते हैं, तो हम उसको टेस्ट करके उनको बताते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंडर इनवाइसिंग के ज़रिए, यानी वो एक तरह समझ लें हमारा शोल्डर यूज़ करते हुए उनके ऊपर जो भी फ़ाइन वगैरह होते हैं वो लगाते हैं। तो ये हमारे पास पहले भी आती थी, लेकिन हमारे पास कोई फैसिलिटी ऐसी थी नहीं, तो ये हम लोग तो रिजेक्ट कर देते थे। तो अब इसमें जैसे यूज़ पैनल है, यूज़ बैटरीज़ हैं, ये अलाउ नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि यूज़ पैनल है, यूज़ बैटरीज़ हैं? और अगर एक दफ़ा मुल्क के अंदर आ गई है एज अ गार्बेज, ई वेस्ट के तौर पे, तो डंप आपको खुद ही करना है। तो ये हम लोग उसको जाके फिर उसको देख के फिर बताते हैं, उसकी मेजरमेंट वगैरह करके कि ये यूज़ है भी या नहीं है। सो वी स्टार्टेड एस्टैब्लिश इन 2019, इनॉग्रेशन इन 2021. We have got one funding from Government of Pakistan and other funding from World Bank project, and currently we are developing new labs as well. न्यू लैब्स में जो है ये सीलिंग फैन टेस्टिंग लैब है, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसके ऊपर भी काम किया जाए। लैम्प टेस्टिंग है, इंडक्शन मोटर जो कि मार्केट में इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसकी फैसिलिटी डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये भी डेवलप की जा सके। ये क्लाइंट्स हैं हमारे अब तक, ओरिएंट है, कस्टम है, सेंसोलर है, ओशन मॉल है, सिद्दीक्संस वगैरह एंड सो ऑन। राइट, थैंक यू सो मच जी। अगर आपको कोई सवालात हैं तो मेरे ख्याल से पहले ही साथ In the end, that the question will be in the end. एंड में। End में. थैंक यू। Thank you, Dr. Saab, once again for such a relevant topic for the industry.